See, so we'll start the discussion of solution. Again, starting discussion is completely theoretical, which you know already. After that, we'll start solving. We'll start discussing the concept of different concentration terms. How do we express in what amount the solute is present in solution, or how the solute is present along with the solvent. So what is the, first of all, I will tell you, solution can be of three types: true solution, colloid, and suspension. Suspension and colloids are heterogeneous, but true solution is what? Homogeneous. Homogeneous means what? If you make a true solution, if you form a true solution, and if you take any part of that, it will have same composition. The composition will be what? Same. Components of the true solution is what? Solid, liquid, or gas. If only two components are present, we call it what? Binary mixture, a binary solution. और क्या बोल सकते हैं इसको? Binary solution. Generally, the major component is solvent. The minor component is solute. वो कोई फिक्स नहीं है, जरूरी नहीं है. Solute और solvent को मिला दिया तो solution बन जाता है. The mass of solute plus mass of solvent will be what? Mass of solution. But can I say that molar mass of solute plus molar mass of solvent equal to molar mass of solution? Quickly give the answer. No. No. Why? Quickly. बोलिए. Why we cannot say that molar number of moles of solute plus number of moles of solvent equal to number of moles in solution बोल सकते हैं. But we cannot say that molar mass of solute plus molar mass of solvent equal to molar mass of solution. Why? Because molar mass is intensive property. You must have remembered that. Molar mass cannot be added directly because it is intensive property. Now, what is dilute solution? The solution containing relatively smaller amount of solute is dilute. Concentrated larger amount of solute. What is standard? जिसका concentration पता हो. Now, what is concentration? It is a way of representing what is the amount of solute present in the solution or with the solvent. Try to learn the definition of concentration of solution. The quantity of solute present in a definite quantity of the solution. Definite का मतलब fixed हो गया वो. So can you tell me what is concentration? Intensive or extensive? बताइए. Extensive या intensive? So concentration of a solution is what? Intensive property, because we fix some quantity of solution. So concentration of solution is what? बताइए. Intensive. Concentration short form यहाँ लिख ही लेते हैं, पूरा एक बार लिख लेते हैं, फिर बाद में मेहनत नहीं करनी पड़ेगी. सर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट को सॉल्वेंट के साथ ऐड किया तो सॉल्यूशन का सेम रहेगा. क्या बेटा फिर से बोलो. कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट प्लस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट. सॉल्यूट नहीं होता, सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन होता है. उसमें सॉल्यूट को डिफाइन करते हैं, बिकॉज सॉल्यूट को ऐड करेंगे तभी तो सॉल्यूशन बनेगा. Yes. जब हम कहते हैं concentration of solution, तो we are talking about solute present in the solution. समझ गए? Yes, sir. पर हम लोग बोल देते हैं कि हाँ concentration of solute कम है, तो ठीक है, उसका मतलब हुआ कि solution में solute कम है. ठीक है ना? Okay, sir. Yes. Concentration is word for solution, but expressed in the form of what? Solute. So concentration of solution is what? Intensive property. Now,
डेफिनेशन याद कर लेते हैं. क्वांटिटी ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन अ डेफिनेट क्वांटिटी ऑफ द सॉल्यूशन और प्रेजेंट विद डेफिनेट क्वांटिटी ऑफ सॉल्वेंट इज नोन एज concentration of solution. There are different ways to express concentration of solution, which are known as concentration terms. What is concentration term? Intensive property. Concentration unit, intensive property. तो इनको आप डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं क्या? बताइए. बताइए. इनको आप डायरेक्टली ऐड कर पाएंगे क्या? नो सर. दोनों का कॉन्सेंट्रेशन पता है, दोनों का ऐड कर सकते हैं? नहीं कर सकते. कॉन्सेंट्रेशन कैन नॉट बी एडेड डायरेक्टली. ठीक है ना. वन बाय वन जाते हैं. द कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स कैन बी टेम्परेचर डिपेंडेंट और टेम्परेचर इंडिपेंडेंट. पहले हम लोग नाम याद करेंगे, फिर वन बाय वन सबको डिफाइन करेंगे, फॉर्मूला निकालेंगे, और ये फॉर्मूला और डेफिनेशन का कॉन्सेप्ट यूज करना होगा. तो मेरे पास टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म है, टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म है और टेम्परेचर इंडिपेंडेंट टर्म है. टेम्परेचर डिपेंडेंट और टेम्परेचर इंडिपेंडेंट. तो डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट कौन कौन से हैं? परसेंटेज डब्ल्यू अपॉन डब्ल्यू, मोलालिटी, द सिंबल इज एम, स्मॉल एम, मोल फ्रैक्शन स्मॉल एक्स, कुछ और भी सिंबल बोलते हैं, बस एक्स यूज करिए. पीपीएम पार्ट्स पर मिलियन, पीपीबी पार्ट्स पर बिलियन. इन ऑल द कॉन्सेंट्रेशन टर्म जो भी फॉर्मूले आप यूज करोगे, the formula of all the concentration term involves solution in the denominator except molality. उसमें क्या रहता है? सॉल्वेंट डिनोमिनेटर में मिलता है. If I talk about the formula of mole fraction, ppm, ppb, molar percentage w upon w, इन सब में डिनोमिनेटर में क्या रहेगा? आपको सॉल्यूशन रहेगा, सॉल्यूशन से रिलेटेड डेटा रहेगा. बट मोलालिटी के डिनोमिनेटर में क्या रहेगा? सॉल्वेंट का डेटा रहेगा. बस एक ही चीज है. नॉट ओनली टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, सभी कॉन्सेंट्रेशन टर्म के डिनोमिनेटर में क्या रहता है? सॉल्यूशन रहता है. ओनली वन कॉन्सेंट्रेशन टर्म इन्वॉल्व्स व्हाट? सॉल्वेंट. व्हाट? मोलालिटी. याद कर लेते हैं. तो सबसे पहली इंफॉर्मेशन जो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए ये वाली है. ठीक है. डिपेंडेंट में कौन कौन से हैं? परसेंटेज डब्ल्यू अपॉन वी. वी दिख गया आपको, वॉल्यूम दिख गया. तो डिपेंडेंट कौन सी होती है? जो वॉल्यूम पे डिपेंड करता है. तो जितने भी कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स हैं, अगर उसमें वॉल्यूम इन्वॉल्व है तो दोज विल बी टेम्परेचर डिपेंडेंट. डन. दोज विल बी टेम्परेचर डिपेंडेंट. तो परसेंटेज डब्ल्यू अपॉन डब्ल्यू और डब्ल्यू अपॉन वी, मोलारिटी, स्ट्रेंथ, पीपीएम, पीपीबी, सभी में क्या मिलेगा आपको? वॉल्यूम मिलेगा. अब जो कॉन्सेप्चुअल पार्ट है प्रॉब्लम सॉल्विंग से रिलेटेड, वो देखिए. इफ यू नो मोलालिटी, मान लो किसी सॉल्यूशन का मोलालिटी पता है और आप उसी सॉल्यूशन का परसेंटेज डब्ल्यू अपॉन डब्ल्यू निकालना चाहते हैं, डोंट बॉदर अबाउट कि वो क्या है, तो समझिए कि क्या करना है उनके साथ. इफ यू नो मोलालिटी एंड इफ यू वांट टू फाइंड आउट परसेंटेज डब्ल्यू अपॉन डब्ल्यू ऑफ द सेम सॉल्यूशन, तो डेंसिटी की जरूरत नहीं है. टेम्परेचर इंडिपेंडेंट से टेम्परेचर इंडिपेंडेंट निकालना चाहते हैं, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन की जरूरत नहीं है, क्योंकि वॉल्यूम टर्म यूज ही नहीं होगा. होगा क्या? वॉल्यूम का टर्म यूज ही नहीं होगा. तो वॉल्यूम चाहिए होगा तभी तो हमको डेंसिटी यूज करनी पड़ेगी. सिमिलर डिपेंडेंट से डिपेंडेंट अगर निकालना चाहते हैं तो ऑलरेडी डिपेंडेंट में वॉल्यूम टर्म है, और दूसरा डिपेंडेंट निकालना चाहते हैं तो फिर से वॉल्यूम की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज वॉल्यूम पहले से ही है. बट अगर इंडिपेंडेंट से डिपेंडेंट निकालना चाहते हैं या डिपेंडेंट से इंडिपेंडेंट निकालना चाहते हैं तो डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन की जरूरत पड़ेगी. क्लियर सबको? यस. याद करिए पूरा स्क्रीन. पहले याद करेंगे मतलब याद करेंगे, आलस मत बनिएगा. आप सिर्फ एक ही चीज फॉलो करिएगा हर टीचर का, कि ब्लाइंडली जो कहते हैं वो सुनिएगा. बाद में ये सब नहीं होती है, फिर आपकी परफॉर्मेंस भी डाउन होती है. फिर आपके पेरेंट्स पूछने आएंगे कि अभी तक अच्छा मार्क्स आ रहा था, फिर डाउन क्यों हो गया? क्योंकि आपने सुनना बंद कर दिया. तो अभी मैंने याद करने के लिए कहा, मतलब याद कर लिया सर, आप पूछ के देख लीजिए. तो कौन कौन से टर्म काउंट कर लीजिए. परसेंटेज डब्ल्यू अपॉन डब्ल्यू, मोलालिटी, मोल फ्रैक्शन, पीपीएम, पीपीबी, परसेंटेज डब्ल्यू अपॉन बी, मोलारिटी, स्ट्रेंथ, पीपीएम, पीपीबी. और अब दोनों के टर्म एक्सप्रेस कर सकते हैं. जनरली इसके फॉर्म में एक्सप्रेस होती है जो पीपीएम, पीपीबी है.
लेकिन दोनों ही चलता है, कुछ फर्क नहीं पड़ता, दोनों ही चलता है, क्योंकि परसेंटेज W अपॉन W जब हो सकता है और परसेंटेज W अपॉन V हो सकता है, तो PPM PPV वही है। अच्छा, W अपॉन W एक फॉर्मूला मैं आपको याद कराता हूँ कि परसेंटेज W अपॉन W सिंबल है, इसका फॉर्मूला ये सिंबल ही होता है। परसेंटेज का मतलब बेटा क्या है? 100, ठीक है ना। और पहला W क्या है, किसका होगा? सॉल्यूट का होगा या सॉल्यूशन का होगा या सॉल्वेंट का होगा? Solute. सॉल्यूट का होगा। जो न्यूमरेटर में क्या रहता है? सॉल्यूट रहता है, तो सॉल्यूट आ गया। सॉल्यूट का मास हो गया होगा, है ना। अपॉन किसका मास आएगा? Solution. सॉल्वेंट। क्यों? सॉल्वेंट क्यों नहीं आ सकता? सर आपने बोला डिनोमिनेटर में सोल्यूशन रहता है। बस, तो मैं कौन सा टफ क्वेश्चन पूछा था? तो अभी श्रेणी ने गलत क्यों बोला? श्रेणी तुमने गलत कहा ना अभी। सिर्फ मोलैलिटी में, डिनोमिनेटर में क्या मिलता है? सॉल्वेंट। रिमेनिंग सभी में क्या मिलेगा डिनोमिनेटर में? सॉल्यूशन। सॉल्यूशन। तो जो चीजें सिखाई जाती है उसको ब्लाइंडली सीखनी है। लेटर ऑन आप अपना फ्लेवर डालिए, अपनी नॉलेज का, अपने बुद्धि का, बट स्टार्टिंग में तो सब टीचर का फॉर्मूला मेथड ही फॉलो करनी है ब्लाइंडली। तो परसेंटेज W अपॉन W जो सिंबल है वही फॉर्मूला है। कैन यू टेल मी व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ दिस? परसेंटेज W अपॉन V तो 100 होगा, इनटू मास ऑफ सल्यूट होगा, अपॉन किसका वॉल्यूम होगा? Solution. सॉल्यूशन का। तो जो सिंबल है वही फॉर्मूला बन गया, ठीक है ना। अब आते हैं कॉन्सेप्ट और डेफिनेशन फॉर्मूला बताया गया, अभी मैं इस पे टाइम नहीं दे रहा। स्टडी ऑफ डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन टर्म। पहला है परसेंटेज बाय मास ऑफ सल्यूट। परसेंटेज बाय मास मतलब वॉल्यूम टर्म यूज नहीं करने हैं। अब मैंने इतने सारे लिख दिए, अब ये सब केमिस्ट्री की पागलपन है, सब एक जैसा ही है, समझ रहे हैं? Yes. परसेंटेज बाय मास ऑफ सल्यूट, परसेंटेज बाय वेट ऑफ सल्यूट, परसेंटेज मास बाय मास, परसेंटेज वेट बाय वेट, मास बाय मास परसेंटेज। अब मैं तो कहूंगा परसेंटेज मास बाय मास, मैंने इसी को पढ़ दिया ना, तो लिखा तो ऊपर परसेंटेज मास बाय मास, so that is the best name for that symbol. बट एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है? मास परसेंट और वेट परसेंट। फॉर्मूला क्या लिखा बताइए? मास ऑफ सल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, द यूनिट विल बी सेम। यूनिट क्या रहेगी उनकी? सेम रहेगी। फॉर्मूला याद करिए। कैन यू मेक द डेफिनेशन दिशा? So the क्या percentage by mass of solute is the mass of solute upon mass of अपॉन जैसे ही बोल दिया दिशा, वो फॉर्मूला बन गया। अपॉन बोलना मतलब फॉर्मूला हो गया ना। mass of solute to mass of solution into नहीं, 100. ये तो फॉर्मूला तुमने इंग्लिश में पढ़ दिया बस, कि तुम्हारी इंग्लिश अच्छी है। मास ऑफ सॉल्यूट पर मास ऑफ सॉल्यूशन। सब गलत है। डेफिनेशन और कॉन्सेप्ट ऑफ डेफिनेशन एंड फॉर्मूला आप यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं। नोट चेक करिए अगर आपने अपडेट किया है तो, यू कैन इजीली मेक द डेफिनेशन। I have already told you this kind of format also. तो इसका डेफिनेशन क्या था? If D is 100, C equal to Y. Y is the value of C when D is what? 100 100. ये नहीं बताया है क्या? बताया था। क्या फायदा हुआ बता के? कुछ फायदा हुआ? बताओ, आंसर करो इसका, क्या फायदा हुआ बता के? सर बोल दिया। देखो, भूलना गलत नहीं है, बी ऑनेस्ट एंड अगेन रीड इट, बस कमजोर मत पड़िए। x इक्वल टू ए बाई बी, ये क्या है? ए बाई बी फॉर्मूला है। अगर मैं b इक्वल टू 1 कर दूं तो a इक्वल टू क्या हो गया? x। ये क्या है? डेफिनेशन। तो हम क्या पढ़ेंगे? x इज द वैल्यू ऑफ a व्हेन b इज व्हाट? 1. 1। आप लिखेंगे फिर से सेकंड वन। अब ऐसा मैं बहुत सारा फॉर्मेट बना सकता हूँ डिपेंडिंग ऑन दैट। एक मैं ये दो बताया था, मैं वही लिख रहा हूँ। ये भी क्या है? फॉर्मूला। डेफिनेशन क्या बनेगा? Y is value of C when D is 100. See, I can write d equal to 200 also. d हम 200 भी लिख सकते हैं। उसके अकॉर्डिंग y की वैल्यू, c की वैल्यू बदल जाएगी डेफिनेटली। Yes.
बट हम सिंपल सबसे क्या है, d इक्वल टू 100 लिखेंगे तो c इक्वल टू क्या होगा, y। तो डेफिनेशन में क्या पढ़ेंगे, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ y। यहाँ पे आप लिखेंगे व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ x, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ x। सेम यहाँ पे फॉर्मूला फॉर y और डेफिनेशन ऑफ y। फॉर्मूला तो गिवन ही है, तो डेफिनेशन क्या बना, x इज द वैल्यू ऑफ a व्हेन b इज व्हाट 1। तो हमने b को फिक्स किया ना, a और b क्या थी, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, और x क्या बन गया, इंटेंसिव। व्हेन यू डिवाइड टू एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी द क्वांटिटी ऑब्टेन्ड इज व्हाट, इंटेंसिव। सब बताया हुआ बेटा, बताया कि नहीं बताओ, हाँ सर। बताया हुआ है। जब आप बताया हुआ चीज क्लास में नहीं बताते हैं ना, तो आप पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। और जब तक आप बताया हुआ चीज, कोई भी चीज 5 मिनट पहले बताया हुआ चीज बता रहे हैं, मतलब आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी है, तो आपको कोई बीट नहीं कर सकता, बीट ही नहीं कर सकता, इम्पॉसिबल है बीट करना। फिर से मेंशन करता हूं, इफ वैल्यू इज टू बी कैलकुलेटेड, क्या यूज करेंगे, फॉर्मूला। बोले सर क्या सिंपल सा कॉन्सेप्ट, अभी देखिए कितना यूज होगा इसका। इफ वैल्यू इज गिवन, definition is used, definition is used। तो what is the definition of percentage weight by weight या percentage by mass of solute, percentage mass by mass percent? It is the mass of solute in gram present in, जब mass of solution कितना ग्राम हो, 100%। तो it is the mass of solute in gram present in 100 gram of solution। सिंपल सा डेफिनेशन बना दिया। देखिए अब अगर मैंने ऐसा दिया if 10% W upon W of solution, तो ये निकालना है या गिवन है, if 10% W सर upon गिवन W है। गिवन है, तो 10 क्या होगा, 10 will be the mass of solute। यस। कब, जब मास ऑफ सॉल्यूशन क्या हो, 100। तो मास ऑफ सॉल्वेंट, बोलिए 100 माइनस 10 हो जाएगा, वो भी कब, जब दो ही कंपोनेंट हो। जब एक से ज्यादा कंपोनेंट होंगे तो उसको भी सब्ट्रैक्ट करनी पड़ेगी ना, हमारे दो सॉल्यूट मिले हुए हैं, दोनों का मास कम करना, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा इन द सॉल्यूशन पार्ट। अंडरस्टूड एवरीवन? Yes, sir. अब क्वेश्चन देखिए, a solution is prepared किया हमने by adding 2 gram of substance A to 18 gram of water, calculate the mass percent of solute। कैलकुलेट करना है, तो डेफिनेशन यूज करूं या फॉर्मूला यूज करूं, सर फॉर्मूला। फॉर्मूला में क्या चाहिए मुझे, मास ऑफ सोल्यूट चाहिए। व्हाट इज मास ऑफ सोल्यूट हियर, 2 ग्राम। 2। व्हाट इज मास ऑफ सॉल्यूशन हियर, 18। मास ऑफ सॉल्यूशन सर दिशा तो 20 ग्राम। 20 गलत बोलने का लगता है प्रेरणा, मतलब क्या हो गया, क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं उसको, छोड़ दीजिए, बोलते हैं। व्हाट इज मास ऑफ सॉल्यूशन, 20। 20। तो मास ऑफ सॉल्यूट पता है, मास ऑफ, अब यहाँ लिखा नहीं है सॉल्यूट कौन है सॉल्वेंट कौन है, स्टिल हमें क्लैरिटी तो मिल ही सकती है कि वाटर जनरली क्या लेंगे, सॉल्वेंट लेंगे। हमारे सॉल्विंग में लोग भी कोई भी कॉम्पोनेंट हो सकता है, पर जनरली हम लोग क्या यूज करने वाले हैं, लिक्विड एज अ सॉल्वेंट यूज करने वाले जनरली। तो 2 ग्राम डिसॉल्व इन 18 ग्राम, तो टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन क्या हो गया 20। तो फॉर्मूला लगा देंगे तो 2/20 इंटू क्या हो जाएगा, 100। बोलो 100। 100। अंडरस्टूड? यस। ये आप लिखिए, फर्स्ट पेज छोड़िए, फर्स्ट 2 पेज छोड़ सकते हैं समझने के लिए, और यहाँ से लिखिए, यहाँ लिखिए, एक ही लिखने बोलूंगा, नेक्स्ट वाला से होमवर्क करने के लिए बोलूंगा। ये लिखिए पहले अच्छे से। तो यहाँ पे हमने क्या सीखा कि अगर वैल्यू गिवन है तो उस वैल्यू को हम यूटिलाइज कैसे करें। क्या यूटिलाइज किया मैंने, उससे हमने सॉल्यूट का मास निकाल लिया, सॉल्यूशन का मास निकाल लिया, सॉल्वेंट का मास निकाल लिया। अच्छा, अगर मास ऑफ सॉल्यूट में 10 नहीं लेता, अगर मास ऑफ सोल्यूट अगर मैं 10 नहीं लूं कुणाल, 20 ले लूं, व्हाट इज मास ऑफ सॉल्यूशन, सोच के बताइए।
अगर मास ऑफ सॉल्यूट में 10 नहीं लेता, 20 ले लेता, तो मास ऑफ सॉल्यूशन क्या लेना पड़ता, क्योंकि ये तो फिक्स है, दिस इज नॉट गोइंग टू चेंज. व्हाट वुड बी द मास ऑफ सॉल्यूशन? 100 ही लेंगे. 100 ही लेंगे. वाह, गलत बात है. 200. 200. तो 200. बस 20/200 into 100 क्या आना चाहिए? 10 आना चाहिए ना, because this is Yes. fixed. दिशा समझ में आया? हाँ सर, मुझे लगा आपने 20% W/W दिया. नहीं, मैंने गलत नहीं सुनना है. मैंने कहा 10% W/W फिक्स है, हमने मास ऑफ सॉल्यूट 20 लिया, तो उसके प्रोपोर्शनली हमें क्या लेना पड़ेगा? सॉल्यूशन का मास. बट हम क्यों परेशान करें अपने आप को जब 10 से काम चल रहा है मेरा. ठीक है, कंप्लीट करिए नोटबुक को. क्विक. डन सर. Done. डन. सब लोग हो गया? यस सर. Yes. ये क्वेश्चन थोड़ा सा लिख ही लीजिए, इसमें क्या ही क्वेश्चन है. डन सर. बात है परसेंटेज बाय वॉल्यूम बेटा. इसको आप होमवर्क कर सकते हैं सब लोग. परसेंटेज बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, जहाँ पे W था, यहाँ पे क्या कर लिया बेटा? वॉल्यूम कर लिया. Yes. तो वॉल्यूम कर लिया, तो यहाँ पे ग्राम था, वहाँ पे ml हो गया. और जितने नाम ऊपर दिए गए वैसे ही नाम बना सकते हैं हम यहाँ पे भी. एनसीईआरटी में क्या होगा बताओ? वॉल्यूम परसेंट. एनसीईआरटी में क्या होगा? वॉल्यूम परसेंट. Volume. डेफिनेशन क्या बना लेंगे? डेफिनेशन भी बना लेंगे ना. तो बी लिखिए. Yes. बी लिखिए, परसेंटेज V/V लिखिए, छोड़ दीजिए इस पर. क्वेश्चन भी इसका कॉपी पेस्ट है. फिर सी लिखिए, परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम. अब यहाँ पे क्या हो गया? परसेंटेज मास बाय मास हुआ करता था, या मास बाय मास परसेंटेज हुआ करता था. यहाँ पे क्या लिखा हमने? परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम.
मतलब न्यूमरेटर क्या है, Mass. मास, और डिनोमिनेटर क्या है, वॉल्यूम है। मतलब बेसिकली चुराना क्या है, एक कॉन्सेंट्रेशन टर्म का न्यूमरेटर चुराना है ना, और एक का क्या चुराना है, Denominator. ऊपर क्या लिखा हमने, मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml इनटू व्हाट, 100। आसान। Yes. और डेफिनेशन क्या बन जाएगा, इट इज द मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट इन 100 ml of solution. 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। इसको लिख डालिए, in gram presented 100 ml of, if a solution is x% W upon V, तो mass of solute तो x ग्राम हो जाएगा, any doubt? वॉल्यूम सॉल्यूशन 100 ml हो जाएगा, बाय डेफिनेशन पढ़ लिया हमने। सिर्फ x को कहाँ लिख दोगे बेटा, x को कहाँ लिख दोगे, इट में वही लिख दोगे ना, इट इज। तो x इज द मास ऑफ सॉल्यूट, कब, जब सॉल्यूशन का वॉल्यूम क्या लेंगे आप, 100 ml। एनी डाउट? No, sir. बट मास ऑफ सॉल्वेंट या वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट पे कमेंट नहीं कर सकते, कर सकते हैं क्या बताइए? जैसे हमने ऊपर क्या लिखा हमने, मास ऑफ सॉल्यूशन माइनस मास, मास माइनस मास कर सकते हैं, वॉल्यूम माइनस वॉल्यूम कर सकते हैं, कर सकते हैं, कर सकते हैं ना। वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट कैन बी रिटन एज व्हाट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट कैन बी रिटन एज वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन माइनस वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट। लीस्ट यूज होने वाला कॉन्सेंट्रेशन टर्म है ये, लीस्ट, इससे क्वेश्चन नहीं के बराबर आते हैं। बट कैन वी सब्ट्रैक्ट मास इनटू इन वॉल्यूम और वॉल्यूम इन मास? नहीं कर सकते। No. मास ऑफ सॉल्वेंट या वॉल्यूम सॉल्वेंट कमेंट नहीं कर पाएंगे। कोई कमेंट करनी है अगर मुझे मास और वॉल्यूम पे, तो हमें क्या चाहिए होगा, बोलो, डेंसिटी ऑफ, Density. क्योंकि डेंसिटी से हम पहले क्या निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को यूज करेंगे, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन यूज करेंगे, उससे क्या मिलेगा, मास ऑफ सॉल्यूशन मिलेगा, और मास ऑफ सॉल्यूशन से फिर हम लोग मास ऑफ सॉल्यूट सब्ट्रैक्ट कर पाएंगे। सो वी कैन नॉट फाइंड आउट एनी वैल्यू हियर। अंडरस्टूड एवरीवन? Yes, sir. लिखिए इसको, Yes. लिखिए। Done, sir. डन, Done, sir. ओके। अब ये 3 क्वेश्चन करिए, क्वेश्चन लिखिए। बहुत ही सिंपल, बहुत ही बेसिक, बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। डोंट डू एनी मिस्टेक, यूनिट का ख्याल रखिएगा। डेंसिटी ऑफ x% W अपॉन W सॉल्यूशन, चाहे x% W अपॉन W सॉल्यूशन है, मतलब x गिवन है, Yes. डेंसिटी भी गिवन है सॉल्यूशन की, निकालनी क्या है, परसेंटेज W अपॉन V। सेकंड, density of x% W upon V solution is D. Find again percentage W upon W. If percentage W upon W and percentage W upon V of solution is x1, x2, then find density of solution. 3 क्वेश्चन है, तीनों से आपको बहुत चीजें सीखने को मिल जाएगी, फॉर्मूला, डेफिनेशन, सबका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा।
डू इट, टेक योर इनफ टाइम, डोंट रश, यूनिट का ख्याल रखिए, देखिए कैसे कन्वर्ट किसमें करनी है। आप जब फंसेंगे तो मैं थोड़ा सा हिंट दूंगा, फिर थोड़ा और फंसेंगे तो फिर मैं हिंट दूंगा, करते जाइए आप। अब बन जाएगी फर्स्ट एड में तो टेंशन ही नहीं है, बन जाना चाहिए फर्स्ट एड में ही। हो गया फर्स्ट, किसी का फर्स्ट हुआ? ईशा फर्स्ट हुआ? सर हाँ एक्स सर। परसेंट आंसर आएगा। कितना? फर्स्ट का x% आएगा? सेम कैसे आ सकता है? तो वैल्यू सेम आ सकती है बट नहीं। सर x/d। x/d हो सकता है, पता नहीं। सॉल्यूशन सेंड करो।
यह सॉल्यूशन सेंड करिए। हाँ सर। कैसे कैसे कर सकते हो ऐसा? सुपर लापरवाही है। दिशा, दिशा, हाँ सर। सुपर सुपर लापरवाही। लापरवाही नहीं कहेंगे इसको, तो सुपर लापरवाही कहेंगे। ये सबसे पहली चीज समझिए। आप लोग अब आप लोग कोई भी थ्योरी यूज नहीं कर रहे। फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी, इज इट गिवन और यू हैव टू फाइंड आउट? Given. Given. गिवन। तो अगर गिवन हो तो क्या यूज करेंगे? Definition. डेफिनेशन यूज करेंगे। तो x% w अपॉन w का मतलब क्या पता है मुझे? बताओ फटाफट। Mass of absolute solute is is X. equal to X. शांत मत रहो, फटाफट बताओ। तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं आप लोग, लापरवाही कर रहे हैं। मतलब गलती तो कर ही नहीं रहे। व्हाट विल द मास ऑफ सॉल्यूशन? 100. तो हमें ये दो डेटा मिल गया। दो डेटा कैसे मिला? क्या यूज किया हमने? Definition. Definition. ये दो डेटा को यूज करना है। अब ये निकालना है। क्या यूज करना, क्या क्या करेंगे? डेफिनेशन या फॉर्मूला? Formula. Sir, formula. अब फॉर्मूला के लिए मुझे क्या क्या चाहिए? इसके फॉर्मूला के लिए क्या क्या चाहिए बताइए? Sir, mass or volume. Mass and volume. फिर लापरवाही बोल रहे हैं। मास वॉल्यूम किसका? पत्थर का, मिट्टी का? Sir, क्लियरली बोलिए। Solution का. sir, solute का mass और solution का volume. सॉल्यूट का मास चाहिए और सॉल्यूशन का वॉल्यूम चाहिए। डन। Yes. क्या आपके पास सॉल्यूट का मास है? Yes. Yes sir. तो क्या आपके पास सॉल्यूशन का वॉल्यूम है? No. है क्या? बताइए। No. अभी नहीं है। तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम निकालने के लिए हमें क्या करनी पड़ेगी? निकालना पड़ेगा। वेरी गुड, बहुत अच्छा। मैं यही आंसर एक्सपेक्ट कर रहा था। निकालना पड़ेगा। अब निकालना पड़ेगा, उसके लिए क्या यूज करूंगा? Formula. फॉर्मूला तो ठीक है, कितना फॉर्मूला यूज करोगे? परसेंटेज डब्ल्यू अपॉन वी का फॉर्मूला यूज करेंगे, वो आपने बता दिया। क्या क्या यूज करोगे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकालने के लिए? वॉल्यूम सॉल्यूशन निकालनी है, क्लैरिटी आ गई। अब उसको निकालने के लिए आप क्या क्या यूज करेंगे? कैसे अप्रोच करेंगे बताइए? Sir, density और mass से. डेंसिटी और मास से, बिकॉज आंसर विल बी वेरी सिंपल। अब मैं कभी क्वेश्चन टफ नहीं पूछता क्लास में, दिमाग में फिट कर लिया और लिख लीजिए अगर नहीं याद रहेगा तो। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन चाहिए अगर मुझे, तो मुझे क्या क्या चाहिए? Mass and Mass and density. density. क्या दोनों गिवन है आपके पास? दोनों है आपके पास अभी फिलहाल? Yes sir. Yes. व्हाट इज मास ऑफ सॉल्यूशन यू हैव? 100 gram. व्हाट इज डेंसिटी गिवन टू यू? 1 gram per. 1 ग्राम कहाँ से पढ़ रहे हो? D. Sir, ग्राम, D. डी ग्राम पर ml। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन विल बी 100 अपॉन डी। ग्राम ग्राम कैंसिल, सब क्या बचेगा? ml न्यूमरेटर में आ जाएगा। व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन? 100 100 upon by D. D. जिसमें ये x ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट है, बिकॉज x ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट था 100 ग्राम में। उस 100 ग्राम की वॉल्यूम क्या है? 100 अपॉन डी है। तो डेफिनेटली जिस वॉल्यूम में x ग्राम प्रेजेंट है उसकी वॉल्यूम निकाल लिया हमने। किसी और का वॉल्यूम नहीं निकालेंगे, उसी का वॉल्यूम निकालेंगे जिसमें x ग्राम प्रेजेंट है। रैंडम कुछ भी निकालना नहीं है। तो 100 अपॉन डी निकाल लिया। अब हम फॉर्मूला परसेंटेज ऑफ w अपॉन v मुझे निकालनी है। तो वैल्यूज टू बी कैलकुलेटेड। Yes. व्हाट इज द फॉर्मूला? मास ऑफ सॉल्यूट। व्हाट इज द मास ऑफ सॉल्यूट यू हैव? X gram.
And what is the volume solution you found in which x gram of solid is present? 100 by D. by D. Into क्या करनी है? 100 क्या आ गया वैल्यू? XT. बताओ किसी भी स्टेप में ऐसा कोई डिफिकल्ट थ्योरी पढ़ाया मैंने? नहीं सर. और यही अगर मैं सॉल्यूशन आपको डायरेक्टली दे देता तो बोलते कितना आसान तो था सर. अगर आप बिना अटेम्प्ट किए करते, 15 मिनट आपने लगाया और गलत किया, मतलब क्वेश्चन अच्छा है. ये अगर क्वेश्चन दिया होता, सॉल्यूशन तुरंत दे दिया होता, हाँ ठीक है सर, तो वेरी सिंपल है, आगे बढ़ते. तो यू पीपल नेवर चेक द फॉर्मूला, चेक द सॉल्यूशन बिफोर अटेम्प्टिंग इट. बिना टाइम दिए, अपना टाइम लगाए हुए. डन? क्लियर है क्वेश्चन? Yes sir. क्या मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ सेकंड वाला बना के दिखा देंगे मुझे? उसी इसी तरह से पूरा प्रोसेस के हाँ, फॉलो. बनाइए, बनाइए. बिल्कुल कॉपी पेस्ट रहना चाहिए फॉर्मेट इसी का. जरा सा भी कहीं कुछ चेंजेस नहीं, बस डेटा और जो वैल्यूज होंगे वो सब चेंजेस होंगे. फॉर्मेट यही रहने वाला है. तो ऊपर मैंने लिखा है वैल्यू इज गिवन, डेफिनेशन इज यूज्ड. उस डेफिनेशन से हमने कुछ डेटा मिला बेटा. डेफिनेशन यूज करके हमने अगर डेटा निकाल लिया ना, क्वेश्चन आधा वही सॉल्व हो गया. ये निकाल लिया, क्वेश्चन वही सॉल्व है. तभी तो डेफिनेशन का यूटिलाइजेशन है, इंपॉर्टेंस है. करिए. सर इसका आंसर X by D है. मुझे क्या पता, मैंने नहीं निकाला. तुम सोच रहे हो फिर से. दिशा, तुम्हें अपने आप में मेहनत वाला फैक्टर इंप्रूव नहीं करना है. एरर फ्री होने की क्वालिटी इंप्रूव करनी है. मेहनत तुम करते ही हो, इनफाइनाइट करते हो. Yes sir, X by D आंसर है. सबको आया क्या? दोनों सॉल्यूशन करिए जिन जिन का हुआ है. ठीक है, थर्ड करिए.
सर थर्ड का आंसर 1 ग्राम पर एम एल। हाँ सर। फिर से तुम लोग लापरवाही, फिर से लापरवाही है बेटा। पहले आपने अप्रोच कैसे किया मुझे बताइए ना। परसेंटेज डब्ल्यू अपॉन डब्ल्यू गिवन था, नहीं डेंसिटी, एक मिनट, दोनों ही गिवन ही था, दोनों ही गिवन था और डेंसिटी। सोचना है दिशा, सोचना है को सॉल्विंग के टाइम पे कहीं भी कोई वैल्यू पुट नहीं कर देंगे किसी डेफिनेशन में। डेंसिटी का फॉर्मूला मेरे पास है नहीं, बताइए। जिसको आया है वन या कुछ भी मुझे सॉल्यूशन भेजिए या एक्सप्लेन करिए, आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। सर डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, तो हम लोग को मास चाहिए और वॉल्यूम चाहिए, एंड गिवन इज कि परसेंटेज डब्ल्यू बाई डब्ल्यू इज इक्वल टू एक्स। सो एक्स मास ऑफ सोल्यूट एक्स 1 हो गया, तो मास ऑफ सोल्यूशन 100 ग्राम हुआ, एंड सेकेंड इससे मास ऑफ सोल्यूट x2 हुआ, तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन 100 ml आया। सो डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम 100 by 100। यस सर, मुझे भी ऐसे ही। सॉल्यूशन भेजो, एक बार देख लेता हूँ। अच्छा, ये कहाँ लिखा था कि x1 इक्वल टू x2 है? मैंने ऊपर क्या समझाया था कि जो सॉल्यूट का अमाउंट है x, उसी का वॉल्यूम होना चाहिए, उसी का मास होना चाहिए। वही किया ना आपने फिर। x ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट था 100 ग्राम सॉल्यूशन में, तो आपने 100 ग्राम का वॉल्यूम निकाला, है कि नहीं? वॉल्यूम किसका निकाला आपने? रैंडम तो नहीं निकाला ना। वॉल्यूम उसी का निकाला जिसमें x ग्राम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट था। x ग्राम सॉल्यूट किसमें प्रेजेंट था? 100 ग्राम सॉल्यूशन में प्रेजेंट था। यू हैव फाउंड आउट द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जिसका मास क्या था? 100 ग्राम था। और यहाँ पे x1 x2 तो अलग अलग है, सेम है क्या दोनों? नहीं। तो फिर कैसे नो। कर देंगे? x1 का अमाउंट कुछ और है, x1 अमाउंट प्रेजेंट है 100 ml सॉल्यूशन में, x1 प्रेजेंट है 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में, x2 प्रेजेंट है 100 ml सॉल्यूशन में, तो दोनों का अमाउंट सेम है क्या सॉल्यूट का? नो। नहीं। तो दोनों का सॉल्यूट का अमाउंट सेम नहीं है, तो सेम अमाउंट का वॉल्यूम सेम कैसे हो सकता है? मतलब 100 और 100 कैसे हो सकता है? एक 100 ग्राम मिला, एक 100 ml मिला, दोनों सेम अमाउंट का रिलेशन कैसे हो सकता है? समझ में आई बात? अगर x1 x2 सेम यस। होता तो डेफिनेटली कह सकते थे कि x ग्राम प्रेजेंट है 100 ml में, x ग्राम प्रेजेंट है 100 ग्राम में, तो डेफिनेटली 100 ग्राम का ही वॉल्यूम क्या 100 ml। बट x1 x2 आर डिफरेंट। करिए, कितना सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। जब तक फंडामेंटल टॉपिक कंप्लीट नहीं होगी, डिफिकल्ट क्वेश्चन बनेंगे कैसे?
आया किसी का? कृतिका आया बेटा थर्ड वाला? हेलो हेलो, यस सर। थर्ड वाला आया? नहीं सर, ट्राई कर रही हूँ। करिए। नेक्स्ट टेस्ट कब रखा गया आप लोग का? दिस संडे। इसी संडे है? यस सर। हाँ हाँ सर। सर। क्या सिलेबस डाला है? सर केमिस्ट्री का सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ। Okay. देखिए इसका ट्रिक देखिए, बड़ा सिंपल सा ट्रिक है। देखिएगा, बी तो आपने कर लिया, बी सिमिलर फॉर्मेट में करना है। सी में देखिए, परसेंटेज डब्ल्यू अपॉन डब्ल्यू एंड परसेंटेज डब्ल्यू अपॉन वी, x1 x2 गिवन है। तो हम क्या करते हैं, दोनों ही गिवन है, अज्यूम दैट वन इज नोन एंड वन इज अननोन। कोई डाउट यहाँ तक? नो। तो परसेंटेज डब्ल्यू अपॉन डब्ल्यू कितना दिया हुआ है, x1। तो कैन आई से दैट मास ऑफ सोल्यूट क्या लीजिएगा, x1, x1 और मास ऑफ सॉल्यूशन क्या लीजिएगा, 100 100। 100 ग्राम। नाउ टेकिंग दिस, हमने ले लिया। अब यूजिंग डेंसिटी, यूजिंग डेंसिटी, व्हाट इज वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, क्विकली टेल मी। मास अपॉन डेंसिटी। 10 100/d हो गया ml। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकाल लिया किसका, लेकिन जिसमें x1 ग्राम ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट था। मास तो कैन यू टेल मी व्हाट इज द परसेंटेज w अपॉन v? x2। x2 ग्राम। अरे x1 तो x2 तो गिवन ही है, आई एम कैलकुलेटिंग x2 इन द फॉर्म ऑफ x1। अंडरस्टूड? यस सर। बेटा परसेंटेज w अपॉन w x1 गिवन है, तो वी दिस इज गिवन। Second one is also given, but I'm trying to find out the second one and then I will equate with that value. तो x1 upon क्या होगा, 100 अपॉन d into into 100। 100 equal to क्या होगा, x2 x2। Understood? ये हमने Yes। कैलकुलेट किया in terms of x1 by knowing what, हमने अब बोलो सर डेंसिटी तो दिया ही नहीं था हमारा, डेंसिटी हमने d मान लिया। assume density is what, d ग्राम पर ml, हमने ये मान लिया, डेंसिटी मान लिया, x1 गिवन था, उन दोनों को यूज करके हमने परसेंटेज w अपॉन v निकाला, पर वो तो गिवन ही था, तो लेट्स इक्वेट विद दैट। तो फ्रॉम दिस d की वैल्यू क्या आएगी,
What is the trick? If one concentration term is given, another you have to find out. तो आपको एक का डेफिनेशन यूज करना है, एक का फॉर्मूला यूज करना है. अगर दो कॉन्सेंट्रेशन टर्म गिवन है, एक को अज्यूम करना है गिवन है और एक को अज्यूम करना है क्या, निकालना है. तो निकालेंगे हम दूसरे वाले को, पर वो तो गिवन ही है. तो जो निकाला आपने ऑलरेडी गिवन कॉन्सेंट्रेशन टर्म के फॉर्म में, उसको आप गिवन से इक्वेट कर दीजिएगा, जैसे हमने x2 से इक्वेट कर दिया बिकॉज वो हमने निकाला वैल्यू, और फिर उससे आप अननोन क्वांटिटी d को निकाल लीजिएगा. अंडरस्टूड एवरीवन? Yes. Yes, sir. अच्छे से लिखिए नोटबुक पे. कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कुणाल? क्या करना है? एक का कॉन्सेंट्रेशन, दो कॉन्सेंट्रेशन गिवन थे और डेंसिटी निकालनी थी. हमने यहाँ पे क्या दिमाग लगाया अपना कि हमने मान लिया कि एक ही गिवन है और डेंसिटी गिवन है और उसको हमने डी मान लिया. तो उन दोनों को यूज करके हमने थर्ड कॉन्सेंट्रेशन टर्म निकाला इन द फॉर्म ऑफ in terms of density and the first concentration term and equate with the second concentration term. Clarity है? Yes, sir. Done. लिखिए. Done, sir. ठीक है. हम नेक्स्ट मूव करते हैं. पहले तो एक रिलेशन देखिए, मोल्स को अगर मैं मिलीमोल्स में कन्वर्ट करूं तो क्या करना पड़ेगा? 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. लीटर को कन्वर्ट करते हैं किसमें? मिलीलीटर में. तो किसमें कन्वर्ट, किससे मल्टीप्लाई करते हैं? 1000 से. इन द सेम वे नंबर ऑफ मोल्स इनटू 1000 इज व्हाट? नंबर ऑफ मिलीमोल्स. नेक्स्ट टर्म है हमारा मोलालिटी. क्या है बताओ? मोलालिटी स्मॉल m, सिंबल स्मॉल m. फॉर्मूला इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg. कैन यू मेक द डेफिनेशन क्विकली? Hello, can you make the definition? Sir, molality is Equal to नहीं, molality is the number of moles of So solute. molality is the number of moles of solute when mass of solvent is 1 kg. 1 kg, simple. अगर सेकंड फॉर्मूला चेक करूं तो हमने सेकंड फॉर्मूला लाया कैसे होगा? सोचो, न्यूमरेटर को किससे मल्टीप्लाई किया? 1000. को किससे मल्टीप्लाई किया? 1000. तो जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों ही 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो फर्क पड़ेगा वैल्यू में? कुछ नहीं फर्क पड़ेगा. तो ऊपर क्या बन गया? मिलीमोल्स. तो नीचे क्या बन गया? ग्राम्स में बन गया. फिर हमने क्या किया? नंबर ऑफ मिलीमोल्स को क्या लिख दिया थर्ड फॉर्मूले के लिए? नंबर ऑफ मोल्स इनटू 1000 लिख दिया. तो मेरे पास तीन फॉर्मूले हैं. थर्ड फॉर्मूला सबसे ज्यादा यूज होता है बिकॉज मोल्स निकालते हैं और सॉल्वेंट मास ग्राम में दिया रहता है, बट ऑल आर सेम. तो अगर मैं फर्स्ट फॉर्मूला यूज करूं, इट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट. इफ आई यूज द सेकंड फॉर्मूला, क्या बन जाएगा? इट इज द नंबर ऑफ मिलीमोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट विद 1 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट. अगर मैं थर्ड फॉर्मूला यूज करूं तो क्या होगा डेफिनेशन?
सोच के बताइए, सब एक ही है बट फिर भी क्या होगा डेफिनेशन अगर मैं थर्ड फॉर्मूला यूज करूँ तो? It is number of moles of solute when mass of solvent is 1000 gram. वेरी गुड, क्लियर? हेलो, क्लियर है? Yes, sir. गुड. नाउ इफ अ सॉल्यूशन इज 2m, 2m का मतलब होता है 2 मोलाल. मोलाल बोलते हैं या मोलल बोल सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे. 1 मोलल सॉल्यूशन, तो मोलालिटी क्या हो गई? 1 हो गई. इफ अ सॉल्यूशन इज 2 मोलल व्हिच मींस, इसका मतलब क्या हो गया? व्हाट इज मोलालिटी? 2. मोलालिटी क्या हो गई बोलो? 2 हो गई. तो नंबर ऑफ मोल्स, अब इस 2 को कहां पुट कर दोगे? इस इट में. तो 2 क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट है. कब? जब मास ऑफ सॉल्वेंट क्या हो? 1 kg. राइट, लिखो अच्छे से. और 1 kg क्या लिखेंगे? 1000 ग्राम. तो बाय डेफिनेशन हमें ये डेटा मिल जाता है अगर वो वैल्यू पता रहती है. सर ऊपर का वो रेड बॉक्स दिखाएंगे? क्या बेटा? हाँ, Done, sir. डन. मोल फ्रैक्शन देखिए, थर्ड जो नेक्स्ट वाला कॉन्सेंट्रेशन टर्म है. मोल फ्रैक्शन क्या होती है? मोल फ्रैक्शन नाम ही दिख रहा है, मोल का फ्रैक्शन. तो फ्रैक्शन वर्ड इज ऑलवेज रिलेटेड टू लेस देन 1. तो फॉर अ बाइनरी मिक्सचर ऑफ A and B, mole fraction of A is written as number of moles of A upon number of moles of A plus number of moles of B. तो डेफिनेटली डिनोमिनेटर क्या हो गया? टोटल हो गया. व्हाट इज डिनोमिनेटर? टोटल मोल्स इन द मिक्सचर. व्हाट इज डिनोमिनेटर बोलो? टोटल मोल्स इन मिक्सचर. न्यूमरेटर क्या हो गया? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट कंपोनेंट. जिसका मोल फ्रैक्शन आप निकालिएगा उसी का मोल्स कहाँ रहता है? न्यूमरेटर में, है ना. और डिनोमिनेटर में क्या रहेगा? टोटल. तो सिमिलरली मोल फ्रैक्शन ऑफ बी क्या लिखोगे? डन डन डन. एक्स ए प्लस एक्स बी निकालोगे तो क्या आएगा? 1 आएगा. तो एक्स ए की वैल्यू हमेशा क्या होगी? न्यूमरेटर इज ऑलवेज मोर देन व्हाट और लेस देन व्हाट? डिनोमिनेटर. डेफिनेटली एक्स ए की वैल्यू हमेशा 1 से क्या होगी? कम होगी. मान लीजिए सिर्फ ए होता तो बी का मोल 0 ले लेते आप, तो मोल्स अपॉन मोल्स 1 हो जाता. फॉर प्योर कंपोनेंट मोल फ्रैक्शन इज वैल्यू इज व्हाट? 1. पर अगर मान लो मैं पूछता हूँ ए है ही नहीं मिक्सचर में और ए का मोल फ्रैक्शन पूछ रहा हूँ, तो मोल्स ऑफ ए क्या कर लोगे? 0 कर लोगे.
What is the minimum value of mole fraction? 0 and maximum value is what? 1. वही मेंशन किया मैंने. In general देखिए क्या लिखा है, xi क्या मतलब ith कंपोनेंट 1 2 3 4 बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं, तो xi इक्वल टू क्या होगा, ni अपॉन समेशन ni. हेलो, क्लियर है यहाँ तक? Yes. So number of moles of ith component is the mixture upon total number of moles. Obviously numerator is always less than what, denominator or equal. तो x1 क्या होगा, n1 upon summation n1 ni. n2 क्या, x2 क्या होगा, n2 upon summation ni. ni is always less than equal to what? ni हमेशा summation ni से क्या होगा, कम ही होगा ना. कम. इक्वल कब होगा, जब एक ही कंपोनेंट होगा. तो सारे मोल फ्रैक्शन को ऐड करोगे तो इक्वल टू क्या आएगा, 1 आ जाएगा. तो मोल फ्रैक्शन ऑफ वन कंपोनेंट इन अ मिक्सचर इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट कंपोनेंट इन मिक्सचर अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल कंपोनेंट इन दैट मिक्सचर. अच्छा, x1 अपॉन x2 निकालेंगे अगर, पहले डेफिनेशन बना लेते हैं. डेफिनेशन बनाइए, डेफिनेशन बनाइए. गलत सलत जो होगा सब जो आप बनाएंगे वही डेफिनेशन सही हो जाएगी. बनाइए पहले. Sir, it is the number of moles of that component in mixture with total number of moles of all component in the mixture. अपॉन बोल दिया तो फॉर्मूला हो गया ना. Sir, with बोला. क्या With. विथ नहीं होगा तो डेफिनेशन बनेगी कैसे? यू हैव टू फिक्स द वैल्यू ऑफ डिनोमिनेटर ना. व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मोलैलिटी? मोलैलिटी इज द वैल्यू ऑफ न्यूमरेटर व्हेन डिनोमिनेटर इज व्हाट, 1. ये तो प्यारा कॉन्सेप्ट सोचो ना जो हमने सीखा है डेफिनेशन कॉन्सेप्ट फॉर्मूला. Yes. क्या बनाएंगे, मोल फ्रैक्शन Mole ऑफ fraction of one component. इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट कंपोनेंट, जब टोटल मोल्स क्या लेंगे आप, 1. 1. तो ये आपको डेफिनेशन लिखनी है, लिख लेंगे. Yes. नाउ x1 अपॉन x2 ये क्या है, मोल फ्रैक्शन का रेशियो है. तो डिवाइड करो तो समेशन आई कैंसिल हो जाएगा. तो मोल फ्रैक्शन रेशियो इज जस्ट इक्वल टू व्हाट, बोलो. Mole ratio. मोल रेशियो. तो देखो इसमें कमेंट कर रहा हूँ मैं, अभी सॉल्यूशन से रिलेटेड नहीं समझाया मैंने, आपको समझाऊंगा सॉल्यूशन से रिलेटेड. देखिए डेफिनेशन आप लिखेंगे बेटा, लिख लेंगे डेफिनेशन. इट इज द वैल्यू ऑफ न्यूमरेटर व्हेन डिनोमिनेटर इज व्हाट, सिंपली 1. तो मोल फ्रैक्शन किसी कंपोनेंट का उसका मोल्स बन जाता है कब, जब टोटल मोल्स क्या लेंगे आप, 1. मोलैलिटी किसी सॉल्यूशन में सॉल्यूट का मोल्स बन जाता है जब टोटल मोल्स, टोटल मास ऑफ सॉल्वेंट क्या लेंगे, 1. ये तो प्यारा डेफिनेशन का कॉन्सेप्ट, डेफिनेशन है, डेफिनेशन का जो इंपॉर्टेंस है. कमेंट देखिए यहाँ पे क्या कर रहे हैं. इफ मोल ratio is known or mole fraction ratio is known, then mole fraction of individual components can be calculated. ठीक है, एग्जाम्पल समझिए. मैंने मान लिया, मान लो Na इक्वल टू 2 and Nb इक्वल टू 3. ठीक है, तो मोल फ्रैक्शन क्या होगा बताओ, 2/3. 2/3. तो 2/5 हो गया.
एक्स बी क्या होगा? 3/5. 3/5. by 5. नाउ एक्स बी निकाल लिया हमने. नाउ एक्स ए अपॉन एक्स बी क्या है? 2/3. And that is same as what? NA upon NB. Fine. अब मैं आपको ये एक पार्ट हुआ, मोल्स पता थे तो मोल फ्रैक्शन निकाल लिया. अब मैं यहाँ दे रहा हूँ एक्स ए अपॉन एक्स बी इक्वल टू क्या है? 2/3. हेलो, Yes. Yes. अगर एक्स ए बाई एक्स बी 2/3 है तो एन ए बाई एन बी भी क्या होगा? 2/3. 2/3. 2/3. From this we can write Na upon 2 equal to Nb upon 3. Yes. Can we Yes. assume कर लेते हैं? तो Na क्या हो गया? 2k. Nb क्या हो गया? 3k. टू इंस्टेंट आर गिवन. फर्स्ट में मैंने मोल दे दिया, मोल से आपने मोल फ्रैक्शन निकाल लिया, है ना? मोल फ्रैक्शन, मोल से आपने मोल फ्रैक्शन निकाल लिया. अब आपको मोल फ्रैक्शन दिया सेकंड वाले केस में, तो सेकंड वाले केस में मोल फ्रैक्शन दिया तो मोल फ्रैक्शन रेशियो दिया. यहाँ पे क्या गिवन था? मोल्स आर गिवन. सेकंड में क्या गिवन है? Mole fraction ratio. रेशियो गिवन. मोल फ्रैक्शन रेशियो गिवन से भी आप क्या निकाल सकते हैं? मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं. नाउ एक्स से क्या लिखेंगे? 2k अपॉन दिस, और एक्स भी क्या हो जाएगी? तो मोल्स दे दो तब भी आप मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हो, मोल्स रेशियो दे दो तब भी आप मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हो, मोल फ्रैक्शन रेशियो भी गिवन हो तब भी आप क्या निकाल सकते हो? मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हो. एनी डाउट? No, sir. तो k तो कैंसिल हो गया, तो k अगर नहीं भी लेते हैं, सिर्फ 2 और 3 ले लेते हैं, तब भी हमारा क्वेश्चन बन जाए. एनी डाउट? No, sir. No. थर्ड इंस्टेंट, फटाफट बोलना, फास्ट बोलना. XA is to XB is to XC is 2 is to 3 is to 5 in a mixture of A, B and C. Done? Yes. Find XA, XB, XC. बताइए क्या होगा? क्विकली बोल सकते हैं बिना. X is 1/5. 2/5, 3/4, 1. XA क्या होगा? 2/2 plus 3 plus 5. हाँ, Yes, sir. Yes. है ना कुणाल? कोई दिक्कत नहीं. XB क्या लिखें? 3/10. 3/10. और XC? 5/10. That is 5/10. equal to 1/2. 1. हाँ, 1/2 expression is important. 5/10. So these are concept related to, बोलो, मोल फ्रैक्शन. अब आते हैं इसमें दो ही कंपोनेंट हो. For a binary solution of you're having one solute A मान लेते हैं and a solvent B मान लेते हैं.
जो हमने ऊपर लिखा है वही लिख रहे हैं, कुछ अलग नहीं लिखा। For a binary solution having one solute and one solvent and a solvent, बताइए ये मोल फ्रैक्शन का जो कॉन्सेप्ट है ना वो कहीं भी यूज कर सकते हैं, जरूरी सिर्फ सॉल्यूशन से रिलेटेड हो, मिक्सचर से रिलेट कर सकते हैं। तो मोल फ्रैक्शन और सॉल्यूट क्या लिखेंगे, बोलिए। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ solute upon number of moles of solute plus number of moles of, यहाँ पे क्या लिख लें, solvent. सॉल्वेंट। क्या हो जाएगा सिंपल, Na अपॉन Na प्लस Nb। अब मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट भी निकाल सकते हैं बिकॉज ये कंपोनेंट है दिस। अब मैं यहाँ पे आपको लिखता हूँ कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, क्या डेफिनेशन बनाएंगे, इट इज द Number of moles of solute. it is the value of numerator and denominator is what, 1. 1. it is the number of moles of solute present in one mole of solution। Solution. ये वन मोल किसका समेशन है, नंबर ऑफ मोल्स प्लस नंबर ऑफ सॉल्वेंट। Yes, sir. दिस और सेकंड थोड़ा ज्यादा बेटर है, व्हेन टोटल मोल्स इन सॉल्यूशन इज 1। अब इस ये डेफिनेशन को यूज करते हैं, if mole fraction of solute is x, अगर मुझे पता है, हमें क्या पता है, Number of moles of solvent. पहले सॉल्यूट तो पता है फिर सॉल्वेंट पे जाएंगे। टोटल नंबर ऑफ मोल्स इन सॉल्यूशन क्या होगा, 1. तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या होगा, सॉल्वेंट क्या होगा, 1 minus 8. 1. 1। सिंपल। कब लेकिन, फॉर बाइनरी सॉल्यूशन Solution. और यूजिंग डेफिनेशन। Definitely. डन, यहाँ तक क्लियर, Yes. sir. यहाँ तक। अब यहाँ तक पढ़ लिया हमने, तो यहाँ तक आपको हमेशा के लिए याद हो जाना चाहिए, हमेशा। यानी सर नोट्स उल्टाना पड़ेगा सर, देखता हूँ सर, उल्टाता हूँ सर, वो सब नहीं। यहाँ तक हो गया तो यहाँ तक हो जाना चाहिए, अच्छे से याद हो जाना चाहिए। अच्छा बुकलेट कर रहे हैं,
हाँ सर, सर आपने जो क्वेश्चंस बोले थे इतने हुए, बस थोड़े थोड़े क्वेश्चंस नहीं आए। कोई बात नहीं, एक साथ डिस्कस करेंगे सैटरडे को सीधे। आप लास्ट तक तो पहुंचो, लास्ट तक कर लिए क्या? हाँ सर। फिर तो बहुत अच्छा है, तो तुम्हें नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करना पड़ेगा। विल सी, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं फिर। ओके सर। यहाँ तक आप अच्छे से नोटबुक में लिखेंगे, समझेंगे और बोलेंगे सर इतना तो आ गया सर, अब इतना पूछ के देख लो कभी भी। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग मोलैरिटी पढ़ेंगे, स्ट्रेंथ पढ़ेंगे, ये दो छोटे मोटे चीज बचेंगे तो आपका ऑलमोस्ट कॉन्सेंट्रेशन टर्म भी खत्म हो जाएगा। ठीक है, ओके सर। Okay, sir. थैंक यू। थैंक यू सर। Thank you, बाय। sir.